Hello everyone, welcome to Maneuver. So in this video we'll talk about the data interpretation, which is a demanding section for testnet guys. Maximum students don't know how to handle this section. So those who are targeting for testnet 2021, so this video is going to be very useful for you people. Okay, so in terms of DI, so here I will explain ki how you have to think about calculation and how you can think in a manner that is very simplified way. I'll let you know some tricks and shortcuts also. So those who are targeting for testnet 2021, we have a good news for you people that we are going to start testnet 2021 online live preparation patches. So guys, if you want to really boost your preparation and without going anywhere from your doorstep due to this pandemic, you can join our live preparation batches. We have also classroom lectures in Mumbai, that is in Borivali, Dadar and Vasai. Those are closed in these days. So we have come up with the live preparation batches. So if you want to join, then you can call or WhatsApp on this number, or you can log on to maneuveredu.com guys. Okay. So moving ahead and start with the question. So this is our question. Study the given information and answer the following question. In the table given below, marks obtained by different student in different subjects are listed. So this is the subjects and this is what the people. So this is what the total mark. Total means out of mark. Out of 100, Anupama is getting 85. So this was one example of it. And according to that, this is whole table. On basis of that, we are going to do the question. Okay guys, so let's move ahead and see. Calculate the average marks obtained by all the students combined in science. So all the students, you have to find the average marks of all the students and in science. So specifically here talking about science. So in science, what is the marks? 65 है, 62 है, 55 है, 70 है, 49 है and 44 है. So first of all you have to add. So we are going to see कि कैसे हमको add करना है. So I'm focusing on every single thing. Okay, how you have to add. Just write 65, 62, 55 and this is 70, 49 and this is 44. Okay, can I write it? Okay, and I will take one from here and I will add here. ठीक है, 1 और यहां से फिर से एक मैं निकालूंगा and I will add here. So अब ये जो है ना, ये मेरा बन गया 65 and this one 60, 55, 70 and this is 50 and this is 45. So now you can easily add, है ना? देखो 5, 5, 10, 5, 15. You can write 15, 1 and this is 1. Now 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17, 7, 24, 24, 5, 29, 4, 33 plus 1, that is 34. So this is 345. Now what you have to do, you have to find average. So what you will do, 345 divided by how much people are there. So there are, how much people are there? That is 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 people. So you have to divide it with 6. So how I can write 6 5s are 30. Simultaneously you also have to see the options. Okay, so 6 5s are 34. You are left with 4, 45. So 6 7 ja, so 57 something. So that is your option B. Okay, you don't have to calculate exact value. अगर ऑप्शन में वेरिएशंस हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज लिटिल बिट फार, तो आप उसको देख के मार्क कर सकते हो. ओके, मूविंग अहेड. सो 57.5 विल बी योर आंसर. Now, marks obtained by Charu in Hindi is what percent of the marks obtained by Anupama in the same subject? Okay, so Charu 64 and Anupama 85. So I can say कि चारू का जो मार्क्स है that is what 64 is what percent of 85. So 85 will come into the base. अब आप इस कैलकुलेशन को कैसे easily डील कर सकते हो? देखो, मैं इस 64 को 63 लिख सकता हूँ और इस 85 को 84 लिख सकता हूँ. अब मैंने क्यों लिखा है? देखो, दोनों में मैंने 1 1 रिडक्ट कर दिया है. अब क्यों किया है वो देखो, क्योंकि अब ये 21 से रिडक्ट हो सकता है. 21 3s एंड 21 4s, है ना, हो सकता है. तो आई कैन राइट 3/4
एंड 3/4 का अगर मैं परसेंटेज फाइंड आउट करूं, तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हो आप? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो। बट आपको अगर परसेंटेज टेबल पता है तो यू कैन डायरेक्टली से कि 3/4 इज नथिंग बट दैट इज 75%। इज इट करेक्ट? अब बताओ आप कि 3 यहां पे 63 और 84 मैंने कर दिया, दोनों में से एक एक कम कर दिया, तो जो भी आंसर होने वाला है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे दोनों को कम किया है। तो जो भी आंसर आपका आने वाला है दैट विल लिटिल बिट मोर देन दैट, एंड दैट इज 75.29। वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज देयर। समझ में आ रहा है? आना तो चाहिए था 75 ही आना चाहिए, ठीक है, बट क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि हमने जो ये कम किया है उसकी वजह से स्लाइट डिफरेंस आ सकता है। ओके, मूविंग अहेड, सी द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दीपक्स मार्क इन ऑल द सब्जेक्ट्स? तो दीपक के मार्क आपको फाइंड करने हैं। दीपक, वेयर इज दीपक? दिस इज दीपक, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ दीपक्स मार्क्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सबको ऐड करना है आपको। तो अब ऐड कैसे आप इजीली कर सकते हो, जस्ट सी, दैट विल बी 50। ओके, सो अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ये 65 को मैं 60 लिख देता हूं, ठीक है, 5 को साइड में रख लो, ठीक है। ये 62 को मैं 60 लिख सकता हूं, इस 2 को साइड में रख दिया मैंने। अब ये 69, ये 1 इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया, 70 बन गया, ये 80 बन गया, ये 70 बन गया, ये 40 बन गया, और ये 50 बन गया, ठीक है। मैं ये सारी चीजें आपको लिख के बता रहा हूं बिकॉज यू विल बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन इन योर माइंड। ओके, सो आई एम मूविंग अहेड। अब इसको आप इजीली ऐड कर सकते हो, 6 6 12, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 7 27 हो गया, 27 और 7 34 हो गया, 34 एंड 4 38 हो गया, 38 और 5 कितना हो गया, 38 5 हो गया 43। अब 43 और ये 5 + 2 7 भी है ना, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा 437। ये क्या है, दीपक का ऑब्टेन्ड मार्क है ना, ये क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क, ठीक है। अब मुझे टोटल मार्क फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 100 100, तो 400 तो ऐसे ही हो गए। अब इसको कैसे ऐड करना है, देखो 75 75 को ऐड करोगे तो 150 और प्लस 50 तो कितना हो जाएगा 200, तो 400 और प्लस 200 तो कितना हो जाएगा 600, तो 437 एंड टोटल मार्क नीचे आप लिखते हो इंटू 100 करते हो। अब ये 0 से इसको कट कर दो, अब इसको आपको रिडक्ट करना है, 6 7 जा 42, 17, तो आपका 17 आया है, तो लगभग 73 के करीब आपका आंसर जाने वाला है, एंड दैट इज द ऑप्शन डी। होप इट इज क्लियर, ठीक है। फुल कैलकुलेशन करना नहीं है, ऑप्शंस अगर देखोगे तो यू कैन मार्क इजीली। अभी 72, अब अगर यहां पे 72.62 होता तो देन यू हैव टू कैलकुलेट एग्जैक्टली, बट हियर इट इज नॉट, देन यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एग्जैक्टली। सो आई एम मूविंग अहेड, होप इट इज क्लियर गाइस। Who scored the highest mark in all the subjects combined? ठीक है, so that is our question। तो आप क्या करना स्टार्ट करोगे, सबको ऐड करना स्टार्ट करो, बट यू डोंट हैव टू ऐड एवरीथिंग, ठीक है। तो आप अभी क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऑब्जर्वेशन में आपको पता चल जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है, ठीक है। तो अगर मैं देखो अभी अनुपमा की बात करूं, तो अनुपमा का जो मार्क्स है मुझे 85 95 87 87 मतलब ज्यादा ही दिख रहा है, जितने भी मार्क्स है वो हाई है। अब चारू की बात कर लेते हैं। अब चारू को अगर मैं देखो 64 है, 78 है, 74 है, 63 है, 55 है, 25 है, 53 है, मतलब मैं कह सकता हूं ये अनुपमा से तो ज्यादा नहीं हो सकता है। देखो ना 95 87 80 65 सारे मार्क्स अप है, ठीक है। तो मैं चारू को रिडक्ट कर सकता हूं, हटा सकता हूं, ठीक है। अब चारू हट गया, उसके बाद अभी दीपक का तो मुझे पता भी है मार्क्स की 437, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, बट ठीक है दीपक का भी अब हम लोग देखेंगे। अगर 60 देखो ये कितना कम हो गया, इधर भी कम है, 69 इधर भी कम है, इधर भी कम है, ये एक में ज्यादा हुआ है, बाकी दो में वो भी बहुत कम से ज्यादा हुआ है, उतना तो एक अकेले में ये एक्स्ट्रा गेन कर लिया है, अब बाकी यहां पे भी कम है, देखो ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अभी अगर आप इसको और इसको ऑब्जर्व करोगे अनुपमा को, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि दीपक का भी मार्क्स अनुपमा के बराबर नहीं है, ठीक है, सब में कम है, ठीक है। तो मैं ऐड करने की जरूरत नहीं समझता हूं यहां पे भी। अब गरिमा की बात आई, अब गरिमा और अनुपमा को आप क्या करो, कंपेयर कर लो। तो देखो अभी पहले वाले में अगर मैं चेक करूं 85 और 95 में, तो 92 ज्यादा है, आई नो। तो मैं क्या करूंगा, 92 को 95 से कंपेयर कर सकता हूं ना, तो 95 ज्यादा हो गया। अब देखो यहां पे, अब इन दोनों को करूंगा, देखो ये 82 है, ये 85 है, मतलब अनुपमा अभी ज्यादा है, ठीक है। अभी ये 81 है, ये 87 है, अनुपमा अभी भी ज्यादा है, 79 और ये
87 है, अनुपमा अभी भी ज़्यादा है, 49 और ये 65 ये अभी भी ज़्यादा है, 30 ये 35 अभी भी ज़्यादा है, 61 71 अभी भी ज़्यादा है। मतलब मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की तो मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं भाई, सबसे ज़्यादा मार्क्स अनुपमा ही लाने वाली है, मुझे एडिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं ऐसे ही मार्क्स, ऐसे ही ऑप्शन मार्क कर दूंगा। होप इट इज़ क्लियर गाइज। So this was our lecture, and I have explained ki how you can simplify your calculation, how you can simplify the percentage calculation, addition, subtraction. So we are going to give you more videos on this. So, and also this is our live preparation batch. For any query and assistant, you can write down in our comment box. I will be happy to help you guys. Okay, so if you like the discussion, please hit the like button, do subscribe our YouTube channel. Have a good day. Bye bye, take care.